Yes, everyone, we are going to start the session now. Please make sure you have your pens and notepads with you because it will be easier for you to do the readings as well as writings by then with the passage of the time, and this will remove your any kind of a confusions. एक चीज और, जैसे ही आपको कोई कंफ्यूजन हो, जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन मन में आए, प्लीज राइट इट डाउन. बीच में आप नहीं बोलेंगे. और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है उसको लिखिए. जब आपको टाइम दिया जाए अपनी क्वेरीज को पूछने का, क्वेश्चंस को पूछने का, उस टाइम पे आपने जो लिखा है क्वेश्चन अपने पास वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. दिस इज द बेस्ट वे. दूसरी चीज और, टुडे वी आर गोइंग टू हैव द रीडिंग और अलग अलग तरह की रीडिंग्स हम लोग करने वाले हैं. तो मेक श्योर कि आप कंसंट्रेशन लेवल्स बना के रखें, अपने आसपास किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आपके ना हो, ताकि इट विल बी ईजियर फॉर यू to concentrate on your readings. Now, we are going to start the presentation. First of all, when you are going to read in your IELTS examination, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखते हैं. सबसे पहली बात, predict what the text is about. जब भी आपके सामने कोई भी रीडिंग आती है तो सबसे पहले आप प्रिडिक्शन करते हैं कि किस चीज़ के साथ रिलेटेड है ये रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि साइंस टॉपिक है ये, या आप देखते हैं कि सोशल टॉपिक है, कैसा टॉपिक है. द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट अ रीडिंग इज टू रीड द टाइटल. 90% स्टूडेंट्स टाइटल नहीं पढ़ते हैं. दे डायरेक्टली जंप टूवर्ड्स द कंटेंट ऑफ द पैसेज, जो कि एक गलत अप्रोच है एक रीडिंग करने के लिए. जब भी आप टाइटल पढ़ें, अगर 100% आपको टाइटल समझ में नहीं आ रहा है तो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली यू कैन कम टू नो 30 to 40% that what is actually you are going to read about. Second thing, read quickly. Just have a scanning idea, or you can say just have a scanning view on your reading. उसके बाद हाईलाइट कर लीजिए अपने कीवर्ड्स को, अंडरलाइन कर लीजिए. जो आपको अच्छा लगे आप हाईलाइट कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, इट्स अप टू यू. उसके बाद अगली चीज जो इम्पॉर्टेंट है वो है इग्नोर योर अननोन वर्ड्स. बहुत सारे राइटिंग्स में ऐसे वर्ड्स हैं दैट यू आर नॉट फैमिलियर विद, so it is advisable to leave those words, because when you try to find out the answers of those words, it is likely to waste your time so much that you will need extra minutes to solve your reading every time. Next is, do not read everything that is not needed. Just watch about the questions, just search for the questions, and that's it. That will solve the purpose. Next thing, check your answers and exclude the extra options. It is very helpful while you are performing your MCQs, that is known as one of the most difficult forms in your reading. आप करना क्या है, आपको जो चीज़ समझ में आ रही है, जो चीज़ आपको लगता है कि सही मीनिंग है, उसको उठा लीजिए, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं या बाकी की जो ऑप्शंस हैं, जस्ट लीव दैम. जब आप उनको छोड़ देंगे तो जो बाकी आखिर की जो ऑप्शन बचती है, दैट इज योर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. दैट मीन्स दिस इज नोन एज द एलिमिनेशन टेक्निक. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं. सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन विच यू आर गोइंग टू सी 2 or 3 options and you choose the most suitable one as your answer. Second, information identification questions. These are commonly known as true, false, and not given. Information matching means you have to match the information that is given in 2 different columns. Head matching means you are going to see the proper or the most suitable heading for a passage. Sentence completion means you are going to complete the sentence. Approximately 3 to 4 words are missing, and you have to complete those meaning or complete those sentences by using the direct words or choosing the direct words from your passage. Summary completion is like the conditionals. You require to complete the words or complete the meaning of the sentences by choosing those words. Features means you are going to give specific meaning and match those meanings.
In matching sentence endings, the initial part of the sentence is given to you, but the last part is missing, and you have to complete the endings only. Short answer type questions are very careful questions because you have to answer in your own terms. That means in your own words. Only 2 to 3 words are needed, and you have to complete those words as your answer. In matching information, you are going to see two different columns, and you have to match the informations of two different columns into one, which is connected to which. The first technique while you are going to see the reading is skimming and scanning. आपने जहां पर भी रीडिंग के बारे में पढ़ा हो, किसी से भी कोचिंग ली हो, हर एक इंसान इसको अलग तरीके से डिफाइन करता है। स्किमिंग जो है उसका बेसिक मतलब ये है कि किसी चीज में से किसी और चीज को निकाल लेना, स्किम कर देना। जैसे हम दूध को स्किम करते हैं, स्किमिंग मिल्क आता है। दैट मीन्स मिल्क के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिल्क के जो अच्छी चीजें हैं, उनको अलग निकाल लेना, उसमें से निकाल लेना, निचोड़ को निकाल लेना, दैट इज स्किमिंग। स्कैनिंग होता है जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाते हैं, दैट मीन्स ऊपर से नीचे तक उसको एक नजर में उतार लेना, दैट इज स्कैनिंग। यही एक टेक्निक है जो रीडिंग में सबसे ज्यादा यूज होती है। अभी करना क्या होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। माइंड माय वर्ड्स, आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद आप पैसेज पे आएंगे। जब आप क्वेश्चन से पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन से खत्म कर चुके हैं अपना काम, उसके बाद सेकंड थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज टू रीड द टाइटल। टाइटल पढ़ने के बाद आप वापस आते हैं पैसेज पे, पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। पैसेज पर पहले हम एक सरसरी सी नजर मारेंगे, दैट इज नोन एज स्कैनिंग। जो जो चीजें उस एक नजर में आपके पास आ जाती हैं, उन चीजों को आप जो है वो सबसे पहले निकाल लेंगे। देखिए निकालना क्या है आपको, सबसे पहले आप नजर मारेंगे, उसके बाद कीवर्ड्स को निकालेंगे। अभी कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स बेसिकली उन वर्ड्स को कहा जाता है जो आपके ताले को खोलने का काम करती हैं, कीज का काम करती हैं। दैट मीन्स when you are going to find out your answers in just 2 or 3 lines or 2 or 3 words, तो वो आपका काम आसान कर देते हैं। देखिए क्या करना है आपको, कोई भी डेट आपको देखने को मिले, कोई भी कैपिटल वर्ड्स आपको देखने को मिले, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर आपको मिले पैसेज में, कोई सिंबल डॉलर साइन है, रुपी साइन है, वो हो, किसी लोकेशन का नाम हो, फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क, दिल्ली, एम्स्टर्डम, कोई भी नाम वो, या आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि एक आप कह सकते हैं कि टर्म हो, कोई भी टर्म जो कि सिंगल कॉमास में लिखी होती है, ऐसी चीजों को वी आर गोइंग टू कंसिडर एज कीवर्ड्स, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो आप इन चीजों को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं। आप ऐसी जो एक टेक्निक है वो अपना लें और उन कीवर्ड्स को निकाल लें। जब आप दोबारा से क्वेश्चंस पढ़ते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आप जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, बीच में नहीं बोलेंगे आप, जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं यू विल कम टू नो कि आपके 60% जो क्वेश्चंस हैं वो उन कीवर्ड्स के साथ ही रिलेटेड हैं। जब आप रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो हाफ ऑफ द टाइम, अगर आप 15 मिनट में वो पैसेज करते थे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 वर्ड्स मिनट्स में वो पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लर्न करना सीखिए मीनिंग को। दैट मीन्स जो भी चीज आपको नहीं पता है उसका जो है वो मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए, गेस कीजिए उस चीज को। जब आप गेस करते हैं किसी भी चीज को तो उसका आंसर जो है वो निकालना इजी हो जाता है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। हाँ जी, अब बोल सकते हैं आप, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। एनीवन, एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन और क्वेरी टिल नाउ? यस मैम, दिस साइड जगजीत।
जी जगजीत बोलिए। मैम ये पूछना चाहता कि जो रीडिंग है ये सेम होगी मैम जनरल में और एकेडमिक में? नहीं, जो रीडिंग है दैट इज डिफरेंट ऑफ एकेडमिक एंड जीटी स्टूडेंट्स। जो एकेडमिक है उनमें 3 पैसेजेस आते हैं। दोज पैसेजेस आर क्वाइट लॉन्गर एज कंपैरेटिव टू जीटी रीडिंग। जो जीटी की रीडिंग है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6, डिपेंड करते हैं द सिचुएशंस, 5 to 6 पैसेजेस आते हैं। दोज पैसेजेस आर क्वाइट शॉर्टर एज कंपैरेटिव टू एकेडमिक पैसेजेस। एक्चुअली आई विल गिव जनरल मैम, दैट्स आई एम आस्किंग यू। It's okay, no issue, no issue. Now, any other questions from your sides? किसी का कोई और क्वेश्चन? Okay. Now, we are moving towards the next slide. सबसे पहले हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? टाइटल्स देखेंगे, हेडिंग्स निकालेंगे। ये आ गई हैं वो चीजें जो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। कैपिटल लेटर्स आप देखते हैं अपने पैसेज में, उसको अंडरलाइनिंग वर्ड्स होते हैं। इटैलिक्स कोई वर्ड है, टेढ़े लिखे होते हैं। कोई फिगर्स दैट मीन्स न्यूमेरिकल नंबर्स। कोई ग्राफ्स दिए होते हैं पिछले साल के साथ कंपैरिजन। कोई टेबल दिया होता है। इन चीजों को आप अंडरलाइन करेंगे। एलोकेट कीजिए एक प्रॉपर टाइम, दैट मीन्स डिवाइड योर पैसेजेस इनटू 60 मिनट्स। ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम योर साइड, यू नो आपके पास 60 मिनट्स हैं एंड यू आर गोइंग टू use those 60 minutes to perform your best, and you are going to solve 40 questions in these 60 minutes. Approximately you have 1 hour, less than 1 hour, you can use 50 minutes to do your reading. हमेशा 50 मिनट में 50 मिनट्स में अपनी रीडिंग करने की कोशिश कीजिए. By doing so, if you are able to perform well and you are going to do not feel the pressure of the examination at that point of time, 50 मिनट्स में अपनी रीडिंग करने का जो एक तरीका है वो बहुत हेल्पफुल होगा उस टाइम पे जब आपको एग्जामिनेशन प्रेशर में या एग्जाम में बिठा दिया जाएगा. कुछ एटमॉस्फेयर का असर लगा लीजिए, कुछ ऐसा असर लगा लीजिए कि आपके आसपास इतने स्टूडेंट्स हैं, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल कि जो कैंडिडेट है वो घबरा जाते हैं. Secondly, it is quite difficult to concentrate on the occasion of your on the occasion of your examination. तो 50 मिनट्स में अगर आपकी करने की आदत है रीडिंग को तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट इज वेस्ट मत कीजिए अपने टाइम को. अगर कोई भी क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो उसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, तुक्का लगा दीजिए लेकिन उसको छोड़िए मत. बिकॉज एज यू नो दैट इन आइल्स देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म और यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अपने स्पेलिंग्स को जरूर चेक कीजिए जब आप अपने आंसर्स लिख चुके हैं. इन द लास्ट 2 or 3 minutes ऑलवेज प्रूफ रीड व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिटन. अगली चीज, सिंगुलर एंड प्लूरल. कई बार एस और ईएस की गलती के कारण ही आपके रीडिंग के आंसर्स गलत हो जाते हैं. सो ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर कि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म एक वचन आएगा या प्लूरल बहुवचन आएगा, वो हम चेक करेंगे. एंड ऑलवेज गो विद द वर्ड लिमिट, दैट मीन्स ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. जहाँ पर कहा गया है 3 वर्ड्स मैक्सिमम, दैट मीन्स 3 वर्ड्स ओनली. जहां पर क्या कहा गया है 2 words only, that means they only consider 2 words maximally as their answer. Now, always that means this is a kind of repetition. Do not get panic नहीं होंगे आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद. सेकेंडली एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जब भी आपको ये पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है इन द, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है. आंसर जो है वो आफ्टरनून भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर और राइट डाउन द आंसर, उसको हम इन द आफ्टरनून नहीं लिखेंगे. उसको हम सीधा या तो आफ्टरनून लिखेंगे या इवनिंग लिखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी द वर्ड्स इन द आर गिवन इन द क्वेश्चन. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to understand the meaning
of what they expect from your sides. When you know that what is the expectation, you will be able to consider yourself in a better way, and you will be able to consider the right answer and get the higher band scores. Now, this is the first reading of today. Make sure you have your pens and notepads ready. First is true, false and not given. That means identification questions हैं ये. If the information matches 100%, that is true. अगर आपसे पूछी गई information 100% match करती है, that is true. अगर information 99% भी match करती है लेकिन सिर्फ 0.1% भी opposition है, तो false. अगर जो पूछी गई है information that is missing in the passage, है ही नहीं passage में, then that is the answer is not given. Now I am giving you good 6 minutes to do so. After 6 minutes we are going to find out the answers. अगर 6 minutes से पहले आपके जो answers हैं वो complete हो जाते हैं, then please wait for the others to complete the task. मैं spot watch on कर रही हूँ. After 6 minutes we are going to see the answers. Till then, try to complete your task. One more announcement for you everyone. देखिए, आप अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखिए. मुझे अगर किसी की तरफ से भी अनम्यूट की शिकायत आती है तो आई एम सॉरी, लेकिन आपको बिना बताए मुझे रिमूव करना होगा क्लास में से एज पर आवर इंस्ट्रक्शंस. प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए. इफ यू डू नॉट नो हाउ टू अनम्यूट योरसेल्फ और हाउ टू म्यूट योरसेल्फ, उससे छेड़छाड़ मत कीजिए.
आस्क समवन रादर कि आपको सेटिंग्स जो है वो समझा पाए, ओके। बिकॉज अगर आप में से कोई भी अपनी जो है वो अनम्यूट करते हैं अपने आप को, बैकग्राउंड नॉइस आती हैं, तो इट विल डिस्टर्ब द होल क्लास। एंड मैं कदर करती हूँ आपके टाइम की भी और खुद की भी, तो प्लीज़ मुझे बार बार, इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर मी टू पुट 1 or 2 people on the mute each and every time, क्योंकि आप करीब 60 से अबव जो स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में हैं, तो अगर सभी अपने आप को अनम्यूट करने लगेंगे बिना बात के ही, तो इट विल बी अ डिस्टर्बिंग सेशन, ओके। सो प्लीज़ टेक दिस एज एन वेरी प्रायर इंफॉर्मेशन। थैंक यू। Yes, everyone, this is the time to show you the answers. Now, please match your answers. See the list of your answers. Please match your answers. You have 1 minute to match your answers. After that, we are going to discuss. Chaliye. Now we are going to find out any problem in first. Anyone, any kind of a problem in first? I'm coming to second. No, ma'am. Second? Ma'am. Okay. Yes, ma'am. Second. Now, okay. We are going to find out. It may be. Ma'am, first. First. Okay. You will receive a card telling you if an item has been left with the neighbor. आपको एक कार्ड रिसीव होगा जिसपे ये पता किया जाएगा कि एक आपका जो पार्सल है वो एक नेबर को पकड़ा दिया गया है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट ओवर in the passage, in the first paragraph in fact, so this is not given. Second, it may be quicker to get a refund than a replacement for a non-delivered item. Refund जो है वो जल्दी मिल जाता है replacement से उस आइटम के लिए जो कि आपको डिलीवर ही नहीं हुई, जो आपने ऑर्डर की थी। ऐसी कोई भी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द passage. They are only talking about if the item doesn't turn up, you are legally entitled to that means आप replacement के लिए और refund के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं है कि किस जगह पर दैट मीन्स रिप्लेसमेंट ज़्यादा जल्दी होगी या रिफंड ज़्यादा जल्दी होगा, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है। थर्ड इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग थर्ड? Yes, ma'am. Ma'am, one thing I want to ask. Ma'am, all questions are in sequence order. देखिए क्या होता है कि
अप्रॉक्सीमेटली यस 90% ऐसा ही होता है कि सीक्वेंस वाइज मिलते हैं आपको ऑर्डर, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो चीज लास्ट में नहीं है, हो सकता है वो फर्स्ट पैराग्राफ में पड़ी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है लेकिन कम होती है। ओके। Okay, थर्ड, ma'am. you are entitled to a refund if the item fails to arrive. Mute yourself, Harjot Kaur. If थर्ड पे थे हम, यू आर इंटाइटल्ड टू अ रिफंड, आप रिफंड के लिए इंटाइटल्ड हैं, दैट मीन्स आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर सर्टेन टाइम तक आपकी जो डिलीवरी है काम की चीज की वो नहीं होती है। दिस इज ट्रू। देखिए आंसर, देखिए कहां पर है। द आंसर इज हियर कि अगर आपकी डिलीवरी जो है वो सही टाइम पर नहीं होती है तो 30 डेज में, विद इन 30 डेज उन्होंने ये मेंशन किया है कि 30 डेज खरीदने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास उस चीज की डिलीवरी हो जानी चाहिए। पूछा गया था by a certain time, information matches with each other, that means you are going to see it as a true. Fourth देखिए, there is a time limit when using a charge back scheme for a debit card payment. अगर आप डेबिट कार्ड पेमेंट की एक स्कीम के बारे में, चार्ज बैक वाली स्कीम के बारे में जो है हम बात करते हैं, उसकी एक टाइम लिमिट है। बिल्कुल सही है। द आंसर इज विद इन 120 डेज ऑफ व्हेन यू पेड। 120 दिन के अंदर अंदर आपको ये स्कीम को अवेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ, you can use the chargeback scheme for a credit card payment of more than 100 pounds. उसने कहा है कि चार्ज बैक स्कीम आप तभी यूज कर सकेंगे अगर आपने पेमेंट जो है वो 100 पाउंड से ज्यादा की है। दिस इज फॉल्स बिकॉज उन्होंने कहा है द आइटम कॉस्ट लेस देन 100 पाउंड्स। सो ये फॉल्स है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उस पे 100 से कम है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पेमेंट 100 से ज्यादा है। देयर इज अ ऑपोजिशन बिटवीन द क्वेश्चन एज वेल एज द पैसेज, सो द आंसर इज फॉल्स। सिक्स्थ है, PayPal's online resolution center has a good reputation for efficiency. PayPal की बात जरूर हुई है यहाँ पर, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई है कि इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इससे जो है वो आपको पेमेंट करनी चाहिए। नथिंग लाइक दिस इज एक्सप्लेन्ड। नाउ वी आर मूविंग आवर फोकस टुवर्ड्स द सेकेंड रीडिंग। ये आपका सेकेंड टास्क है। आपको करना क्या है, आपको एक टॉपिक दिया गया है, दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू राइस कुकर्स। ये टाइप्स हैं, एक टाइप है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 तरह के कुकर्स, राइस कुकर्स जिनमें हम राइस बनाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपके पास लेटर्स जो आपके आंसर की तरफ से आप यूज करेंगे, दीज आर A to E, दैट मीन्स the answers will be in the form A, B, C, D. That means these alphabets will be your answer. अगली चीज जो उन्होंने कही है, that is you may use any letter more than once. That means आप एक से ज्यादा बार किसी भी लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। That means हो सकता है C 2 क्वेश्चंस का आंसर हो, D 3 क्वेश्चंस का आंसर हो। So you can use one alphabet more than once. Now you are going to have 6 minutes. After 6 minutes, we are going to find out the correct answers. You have 6 minutes. I'm going to on the spot watch.
Yes, everyone. Now we are going to see the answers. Please match your answers. मैम 2 मिनट्स मोर दे दो। The time limit is over dear. आप जो है आप उतने टाइम में करने की कोशिश कीजिए, स्पीड बढ़ाइए अपनी, ठीक है? मैम स्पीड बहुत लो स्लो है। यस, मैम स्पीड बहुत कम है। आप लोगों की स्पीड कम है? यस यस मैम। ओके, सभी के रहते हैं अभी? यस मैम। नो मैम, मैं डन हो गया सी मैम, ऑल इज करेक्ट मैम। Yes, 14 आउट मैम ऑफ फर्स्ट 40। फोर, मैम चलिए, फर्स्ट फोर कोई बात रहते हैं लास्ट। कोई बात नहीं। नेक्स्ट पैसेज से अभी तो मैं ऑलरेडी आपको आंसर्स दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट वाले पैसेज से हम लोग 2 मिनट ज्यादा दे देंगे, ठीक है? हेलो यस, बोलिए बोलिए। मैडम, मेरे से तो एक ही क्वेश्चन हल हुआ जी, बस 8वें का ई, बस और तो हुआ ही नहीं हल। कोई बात नहीं, इट विल टेक सम टाइम। आपकी जितनी प्रैक्टिस है, देखो हर एक की अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस है, ठीक है? तो मैडम मैं एक्चुअली ना जॉब करता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ही आइल्स के साथ कनेक्ट हूँ। ओके, कोई इशू नहीं है मैंने कभी सुमित सर, पहले कोई इशू नहीं है। देखिए क्या है, आपके ग्रुप में, इन दिस ग्रुप यू आर हैविंग एकेडमिक एज वेल एज जीटी स्टूडेंट्स, ठीक है? ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 1 साल से आइल्स कर रहे हैं, ऐसे भी हैं जो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से हैं, दैट मीन्स अब्रॉड से हैं, ऐसे भी हैं आपके ग्रुप में बच्चे। ठीक ठीक। तो मैं एक ऐसा टाइम लिमिट देना चाहती हूँ कि वो सबके लिए सूटेबल हो, राइट? तो बाय दैट टाइम आई विल गिव यू 7 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 5, सो दैट सभी अपनी तरफ से कोशिश कर पाएं, राइट? चलिए, नाउ हम इसके आंसर्स सॉल्व करते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी कि हम आगे क्या कर पाएंगे, राइट? चलिए, नाउ द फर्स्ट इज 7th one. The handles at the side are hard to use. जो हैंडल्स है साइड पे वो हार्ड हैं यूज करने के, जब हम यूज करते हैं वो इजी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। द आंसर इज डी, ठीक है? देखिए डी कहाँ पर लिखा है इन्होंने, डी पर है 7th। हैंडल्स जो है वो साइड के, देखिए इट हैज अ पेंटेड स्टील एक्सटीरियर with a handle on the each side and steel. It has a lift off lid, comes with booklet, ideas. Handles are tricky to grip. That means उनको handles को उठाना जो है वो बहुत tricky है, वो easy नहीं है handle करने। That means 7th is, the answer is D. 8th देखिए, it cook brown rice without making a mess. व्हाइट चावल तो ये कुकर अच्छा बनाता ही है, ब्राउन राइस भी बहुत अच्छे बनाता है। द आंसर इज ई, वाइल कुकिंग ब्राउन राइस। ये जो है बिल्कुल भी खराब नहीं करता है राइस को, इवन ब्राउन राइस जो है वो भी बहुत अच्छे बनते हैं इसमें। 9th देखिए, इट ऑटोमेटिकली स्विचेस सेटिंग टू कीप द राइस वार्म व्हेन कुक्ड। बनने के बाद ये कुकर अपना जो टेम्परेचर है उसको इस तरह से सेट कर लेता है, ऑटोमेटिक सेट है इसमें, कि जो राइस है वो ठंडे नहीं होते हैं, वो वार्म रहते हैं। देखिए, it is programmed to adjust the temperature once the rice is done. टेम्परेचर खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है, so that it stops cooking but it does not get cooled. कोल्ड नहीं होते हैं जो राइस है। 11th देखिए, सॉरी 10th देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू गेट द रिमूवेबल टॉप रियली क्लीन। जब आप कुकर का ऊपर वाला हिस्सा खोलते हैं तो उसको साफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। द आंसर इज ए। देखिए, देयर आर स्लाइट डर्ट ट्रैप्स अराउंड द रिम ऑफ द लिड। ऊपर की जो लिड है उसकी जो रबर है, रिम होता है रबर जो है लिड की, वो गंदी हो जाती है। Neither the pot and nor the lid is dishwasher safe. इन ना तो आप पॉट को ना ही ऊपर के ढक्कन को
डिश वॉशर में जो है वो साफ कर पाते हैं. सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट क्लीन. आगे है आपके पास 11th आंसर. अ सिलेक्शन ऑफ रेसिपीज इज प्रोवाइडेड विद द कुकर. एक लिस्ट दी गई है रेसिपीज की, कुकर के साथ ही मिलती है आपको ये लिस्ट. द आंसर इज डी. देखिए, इट कम्स विद अ बुकलेट इंक्लूडिंग अ रेंज ऑफ आइडियाज फॉर राइस डिशेस. बुकलेट आती है इसके साथ एक, जिसमें बहुत सारी रेसिपीज हैं कि आप राइस के साथ इस कुकर में क्या क्या बना पाएंगे. नाउ द आंसर ऑफ 12th is it has a handle at the top for carrying the cooker safely. इसके ऊपर एक हैंडल दिया गया है ताकि कुकर को बहुत इजीली कैरी किया जा सके. सिक्योर हैंडल, बी. नाउ 13th, the outside of the cooker does not get too hot. ऊपर का हिस्सा, दैट मीन्स जब आप कुकर को उठाते हैं या उसको छूते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है. दैट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट फॉर द पर्सन विच इज़ कुकिंग. देखिए, आपके पास है ई. क्या कहा है? एक्सटीरियर स्टेज कूल. जो ऊपर का हिस्सा है वो ठंडा रहता है व्हेन इन यूज एंड देयर इज नो डेंजर ऑफ बर्निंग योर हैंड. इसलिए गर्म जो है वो आपके हाथ पे लगता ही नहीं है, इसलिए इसका कोई खतरा नहीं है कि आपको कोई बम्प्स हो जाएंगे. 14th देखिए, यू कैन पुट द पॉट इन द डिश वॉशर. डिश वॉशर सेफ है ये जो कुकर है, दैट इज सी. सीधा लिखा है इज डिश वॉशर सेफ. आई थिंक आपको सबको समझ आ गए होंगे आंसर्स. अभी भी किसी का कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो यू मे 14 वाला रिपीट करना मैम. 14th वाला. 14th वाला उन्होंने कहा है, सिर्फ एक जन बोलिए प्लीज. 14th है जो उन्होंने कहा है यू कैन पुट द पॉट इन द डिश वॉशर. डिश वॉशर एक ऐसी मशीन है जिसमें जो बर्तन है वो खुद ब खुद धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं. तो उन्होंने सीधा लिखा है, सी का आंसर है, सी है इसका आंसर. उन्होंने कहा है दिस इज डिश वॉशर सेफ. दैट मीन्स आप डिश वॉशर जो मशीन है उसमें इस कुकर को आराम से रख सकते हैं धोने के लिए. सो द आंसर इज सी. क्लियर नाउ? Yes ma'am. Okay. Any other question or query from your sides? No ma'am. Madam, No, ma'am. 8. Yes sir. कौन सी? 8. 8th. It cooks brown rice without making a mess. 8th का आंसर E है. ब्राउन राइस जो है वो बन जाते हैं इससे बहुत इजीली. देखिए, इट इज सिंपल टू यूज, नॉट स्पिटिंग और बॉइलिंग ओवर. देखिए, राइस कुकर में कई बार क्या होता है कि जो पानी हम डालते हैं वो ऊपर को उछल जाता है, खराब हो जाता है, सब कुछ बाहर को निकल आता है पानी. तो उसको मैस होना कहते हैं कि खराब हो जाना या काम खराब कर देना, बढ़ जाना काम. तो ये जो कुकर है वो बहुत इजी है, सेफ है और स्पिट भी बाहर नहीं आती, बाहर उछल के नहीं आता पानी. बॉइलिंग भी ऊपर नहीं होती, बॉइल होकर ऊपर से नहीं निकलता पानी. इवन व्हेन कुकिंग द ब्राउन राइस, ब्राउन राइस को भी हम अच्छी तरह से पका सकते हैं इस कुकर में. सो द आंसर इज ई. क्लियर नाउ? Ma'am, यस अर्पण. ma'am, what is the answer of 9th question? 9th is B. Ma'am, here it is written that it programmed to adjust the temperature once the rice is done so that it stops cooking but doesn't get cold. Ma'am, the same answer is we can see here in this paragraph also that कौन से वाले में थोड़ा लाउड बोलिए अर्पण. यू आर नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल. डी में. Yes. Ma'am, in the कहाँ पर last है line, ये? in the last line, however, the keep warm setting must be manually selected and handled manually selected till. ये कह रहे उसमें हैं आप? ऑटोमेटिक आया ना. देखिए इसमें क्या लिखा है, मैनुअल सेटिंग. क्वेश्चन में क्या था? ऑटोमेटिक मैम. तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए? हाँ, ऑटोमेटिक नॉट मैनुअल. Yeah. क्लियर नाउ? Yes, yes, ma'am. ओके, चलिए. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रीडिंग. दिस इज द लास्ट रीडिंग ऑफ टुडे. देखिए, आपके पास जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन है वो है सेफ्टी के बारे में. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी अबाउट द पीपल who are working as an laborers on the roofs. जो छत वगैरह बनाते हैं, पेंट करते हैं या मेंटेन करते हैं अपनी छतों को, ऐसे लोग
कैसे काम करते हैं और उन लोगों की सेफ्टी के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए या क्या क्या कर सकते हैं जो हम हैं, ऐसे चीजों के साथ रिलेटेड होगा ये पैराग्राफ। इंस्ट्रक्शंस है नो मोर देन 3 वर्ड्स, दैट मीन्स हम 3 से ज्यादा वर्ड्स जो है वो ऐड नहीं करेंगे एज आर आंसर। नाउ these are fill in the blanks, these are very easy to find out, but I'm giving you good 7 minutes to do so। ठीक है, मैं स्पॉट वॉच ऑन कर रही हूँ, 7 मिनट है आपके पास। यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन 7 minutes। Ma'am, this filling blanks in the sequence. Maybe these will be in the sequence, most probably।
One more minute for you. Yes, Rimpi, you raised your hand. Do you have any query? मैम आंसर हो गया And speak loudly, please. मैम हो गए थे मेरा It's okay. It's Answer. okay. Just wait for everyone to complete, please. Okay. ओके मैम Okay, everyone. Now we are going to find out the answers. देखिए 15 से लेकर 22 तक आपके आंसर्स हैं. प्लीज मैच योर आंसर्स. 15 से लेकर 22 तक आपके आंसर्स हैं. प्लीज मैच योर आंसर्स. मैम प्लीज पीछे करना, वो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेना था कि आफ्टर दैट बाद में कर सकूं, कोई नहीं पूरे. ओके. पहले आप आंसर्स मैच कीजिए. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वी विल डेफिनेटली गो देयर. ठीक है. सभी को आंसर्स मैच करने दीजिए. जी मैम स्पीड कैसे बढ़ेगी? वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. आप बीच में नहीं बोलेंगे. जब हम डिस्कस करेंगे, रीडिंग खत्म करेंगे, तब आपके सभी के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे. टिल देन आप प्लीज म्यूट हो जाइए. Yes, everyone, now we are going to see and we are going to find out आपकी क्वेरीज क्या हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं इन क्वेश्चंस को लेकर. सबसे पहले देखिए आपके पास है 15th. ओवर हाफ ऑफ फॉल्स आर फ्रॉम लेस देन डैश. कितनी ऊंचाई से ज्यादा फॉल्स हैं जो वो होती हैं? द आंसर इज 3 meters. उसके मैम ये बाद समझ नहीं आया, प्लीज 16th. एक्सप्लेन इन डीप. मैम देखिए, इन्वेस्टिगेशंस बाय वर्कसेफ एक सर्वे कंपनी Okay. है. उनकी इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग ज्यादा तौर पे जो वर्कर्स हैं वो गिरते हैं जब वो एक हाइट पे काम करते हैं, और 50% वर्कर्स जो हैं वो 3 मीटर की ऊंचाई से नीचे की ऊंचाई से भी गिरते हैं जब उनको चोट लगती है. ज्यादा तौर पे ये जो वर्कर्स हैं तब या तो ऊपर काम करते हैं रूफ्स पे, तब या वो लेजर से गिरते हैं. दैट मीन्स कि जो उन्होंने हम जिनको बोलते हैं पौड़ी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, जिसपे 1 by 1 स्टेप्स होते हैं, उन पर काम करने के टाइम पे ये जो एक्सीडेंट्स हैं या तो तब होते हैं या जब छत पे काम करते हैं वो लोग, इतनी ऊंची छत पे काम करते हैं, मैम, तब देयर आर चांसेस कि उनकी बट चोट लगती 50% है. ऐसे लग रहा है कि वो पिछले सेंटेंस का है. वर्क सेफ इनटू फॉल्स दैट अकर्स व्हाइल वर्किंग एट हाइट शो दैट मोर देन 50%. ये उसका लग रहा है, पिछले वाले का 50%. वो उसका नहीं लग सकता है बिकॉज यहाँ पर कॉमा है. देयर इज नो फुल स्टॉप कहाँ इन लगा बिटवीन. कॉमा? कॉमा यहाँ पर है, उससे पहले कोई कॉमा नहीं है. दैट मीन्स वही लाइन चल रही है. ओके मैम. Try to read it again and after that you will find out the answer. मैम 16th देखिए. मैम Yes. इसमें ना Ma'am, मैंने can I अंडर speak? 3 meters लिख दिया था, तो वो हाँ, एक जन बोलिए. हाँ मैम जी मैंने बोलिए. ना अंडर 3 meters लिख दिया था, और अंडर नहीं लगेगा. नहीं लगेगा. ओके, तो अगर मैं डैन लगा है तो अंडर तो अब कैसे कट जाएगा ना डैन के साथ मैम, अंडर विथ. यस मैम मेरा आंसर तो राइट है, पर मैंने मैम अगेन ही रीड आउट किया था. मैंने मैम 50% देखा, उधर ओवर हाफ देखा, या उधर मैम मैंने
लेस देखा और इधर अंडर देखा मैम, मैंने 3 मीटर राइट डाउन कर लिया, मैं आगे तो पढ़ा ही नहीं मैम। तो कोई मैम बात नहीं, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं आंसर है था जब ना मैम, आपका आंसर अंडर से सही ही है। हो रहा है मैम, अंडर से लेसन शो कर रहा है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह मैम रही हैं आप? 17 आवाज नहीं आ रही। 17 मैम। हाँ जी 17। यस मैम। आप 17 पर कहाँ पहुंच गए अभी हैं? तो 16 होना है। हम 15 की बात कर रहे हैं, हम 15 डिस्कस कर रहे हैं। हैव Okay, पेशेंस, उसके मैम। बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ओके मैम, हाँ जी these answers बोलिए। should be written in capital words. देखिए इट इज एडवाइजेबल, ऐसे नहीं है कि अगर आप फ्लो में लिखते हैं या आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो वो गलत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay. बात सिर्फ ये होती है कि अगर आप सारे वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल्स में आंसर देंगे Yes, ma'am. तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन से बच जाते हैं, Mhm. ठीक है? हमने जब लिसनिंग की थी तब भी मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी कि जब आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो समहाउ यू विल बी एबल टू गो आउट ऑफ द कंफ्यूजन्स कि कहाँ पर फर्स्ट इनिशियल वर्ड जो है अल्फ़ाबेट है वो अपर केस होना चाहिए, कहाँ पर लोअर केस होना चाहिए। व्हेन यू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन कैपिटल्स इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू because somehow you will never lose the band scores regarding those kind of problems. So it is advisable to write down all the answer or all the alphabets in capital letters. This is the only reason. Okay, ma'am. Yes, Simarjeet, you raise your hand. Any? अंडर 3 मीटर्स मैंने लगाया था आंसर, मुझे लगा कि अंडर 3 मीटर आएगा। जस्ट 3 मीटर्स आंसर आपने बोला, वैसे एग्जाम में ऐसे लगे हमें जैसे हमने यहाँ लगा दिया अंडर 3 मीटर्स। हमको कैसे पता चलेगा कि 3 मीटर्स ही आएगा, 3 वर्ड नहीं आएगी? ऊपर लिखा ना मोर देन 3 वर्ड्स, आंसर रॉन्ग होगा या सही? मेरी बात सुनो, जब आपको एक लिमिट दी है, 3 वर्ड्स की लिमिट दी है तो जरूरी नहीं कि 3 ही पूरे करने हैं, ठीक है? ये एक मिथ है कि अगर 3 कही है तो 3 हमें जो है वो वर्ड्स लिखने हैं। ट्राई टू कंप्लीट द आंसर इन वन वर्ड। अगर 1 से इनकम्प्लीट है तो 2 वर्ड्स यूज करेंगे, 2 से इनकम्प्लीट है तो हम 3 वर्ड्स यूज करेंगे। जो हमें लिखा गया है देखिए उसको पढ़िए, नो मोर देन। उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि सिर्फ 3। ओके मैक्सिमम अगर हम वर्ड अंडर लिमिट आपकी 3 है, उससे कम में अगर आपका काम पूरा हो रहा है देन यू शुड राइट डाउन इन 2 वर्ड्स ओनली। यस हाँ जी मैम जी अंडर 3 मीटर लगा देंगे तो आंसर गलत जाना सी फिर? बिल्कुल गलत होगा। देखिए मैंने अंडरलाइन किया है। देन लेस देन का क्या मतलब है? लेस देन का मतलब है थोड़ा, अंडर मतलब उसका नंबर भी थोड़ा। अगर अंडर का काम लेस देन ऑलरेडी कर रहा है तो हम रिपीट क्यों करेंगे? ओके मैम। यस यस एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। ओके जगजीत सिंह यू रेज योर हैंड। यस बोलिए। ओके सिमरजीत कौर यू रेज योर हैंड, बोलिए। नो मैम आई कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन 15। ओके फाइन। नाउ देखिए 16th, द मेजॉरिटी ऑफ फॉल्स अकर ऑन। ज्यादा तौर पे जो मेजॉरिटी ऑफ फॉल्स हैं वो कहां पर होती है? द आंसर इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स। यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक इन बिटवीन। सॉरी मैम। रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स, द आंसर इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स। वो बिल्डिंग्स जहां पर काम चल रहा होता है रेजिडेंशियली, दैट मीन्स कि कोई किसी का घर बन रहा है, रेजिडेंस बन रहा है, ऐसी साइट्स पे एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। द आंसर इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स। 17th, mute yourselves everyone. Yes Arpan, you raised your hand. From here, I want to say that answer is residential building site. Okay. Mm-hmm. So, ma'am, here we can write only building sites because residential. कौन सी साइट्स की बात हो रही है? Majority of ऐसे all. मेजोरिटी ऑफ फॉल्स कहाँ पर होते हैं? बिल्डिंग साइट्स पे। अभी अगर हम अकेला बिल्डिंग साइट्स लिख देंगे तो वो तो बहुत सारी चीजें हो गई ना। म्यूजियम बनते हैं उसकी भी बिल्डिंग साइट्स होती हैं, कमर्शियल भी होती हैं, शॉप्स भी होती हैं, मॉल्स भी होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी। मैंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग लिखा है बट साइट्स नहीं लिखा। तो गलत है।
रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में नहीं होती हैं, बनती हैं जब साइट्स पे होती हैं, तो आपका आंसर भी इनकम्प्लीट है। So the answer that is needed to explain each and every situation, the requirement of the question is residential building sites. चलिए, now we are moving towards the 17th answer. 17th का जो आंसर है that is eliminate. इस चीज को अगर हम खत्म करना चाहें तो प्लानिंग की स्टेज पे ही जो चीज हमें नुकसानदायक लगती है उसको निकाल दीजिए। एलिमिनेट होता है निकाल देना। The first thing to be considered is whether it is possible to eliminate this hazard completely. अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो पहले ही आ रही है तो उसको पहली स्टेज पे, प्लानिंग की स्टेज पे ही निकाल देना चाहिए। The answer is eliminate. 18th, prevent a fall by using edge protection, that is scaffolding. प्लीज 17th मैम एक बार रिपीट कीजिए। Eliminate है इसका आंसर। Eliminate होता है किसी चीज को जो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक बने उसको निकाल देना। करना मैम। यस अरुण। बट मैम इसका सेंटेंस कैसे बन रहा है वहाँ पे मैम? कोई सेंटेंस नहीं बन रहा इसको लेके, एलिमिनेट को लेके मैम। उसके बाद मैम कोई मैच एलिमिनेट द हैजार्ड जरूर मैच कर रहा है मैम। मैम नेक्स्ट लाइन आप कैसे मैच कर रहे हैं मैम वहाँ पे? कौन सी नेक्स्ट लाइन? देखिए यहाँ पर कोशिश कीजिए आप, हम वर्ड ही लिख देते हैं। देखिए हमारे पास वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट मैम, ये वर्ड है, ये आपका आंसर है। एलिमिनेट द हैजर्ड। मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। यस मैम। बीच में नहीं बोलेंगे आप, बैकग्राउंड नॉइसेस बंद करेंगे आप। एलिमिनेट द हैजर्ड एट द प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज से ही कोई भी हैजर्ड, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हैजर्ड इज द प्रॉब्लम, उसको निकाल दीजिए। एलिमिनेट मतलब निकाल दीजिए। बिफोर द वर्क बिगिंस, काम के शुरू होने से पहले ही जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं और हमें अंदाजा है कि ये चीज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उस चीज को हम निकाल देंगे। एलिमिनेट मतलब निकाल देंगे। बिफोर द वर्क बिगिंस, काम के शुरू होने से पहले ही, इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है। दिस इज द आंसर। क्लियर नाउ? मैम वहाँ पे स्टार्टिंग से मैम होगा कि द फर्स्ट थिंग टू बी कंसीडर्ड पैसेज में मैम। मैम फोर्थ लाइन में इसमें क्लियर दिया गया है, प्रिवेंट दिया गया है ना वहाँ मैम। नहीं, उतनी देर तक तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। द आंसर इज वेरी क्लियर इन द फर्स्ट लाइन। मैम अगर नहीं तो वहां से क्लियर हो जाएगा। आप वहां से भी पढ़ लीजिए। चलिए 18 देखिए। मैम सॉरी मैम। हाँ जी बोलिए। इसके ऊपर वाले वो पैराग्राफ में मैम वहां से हमने आइडेंटिफाई लगा दिया था, उसके पीछे का वो आता यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था बिफोर द वर्क स्टार्ट। सो इससे मैम मैंने वो लगा दिया, वो प्लानिंग है, मतलब कि बिफोर ही प्लानिंग होती है मैम। मैंने भी आइडेंटिफिकेशन लगाया था मैम, आइडेंटिफाई लगाया था। आपने गलत जगह पे उसको चूज किया है। फर्स्ट थिंग टू बी कंसीडर्ड, इट इज पॉसिबल। लोकेशन आपकी गलत थी, ठीक है मैम? बोलिए। यू आर द बेस्ट टीचर एवर इन माय लाइफ। थैंक यू। आगे चलिए 18th देखिए। प्रिवेंट अ फॉल बाय यूजिंग एज प्रोटेक्शन, दैट इज स्कैल्फटिंग और डैश। अगर प्लेटफॉर्म्स हम बोलेंगे नहीं, हम चुप रहेंगे। थैंक यू। 18th देखिए। प्रिवेंट अ फॉल बाय यूजिंग एज प्रोटेक्शन। अगर हम एज प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं? स्कैल्फडिंग कर सकते हैं, या दूसरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है? स्कैल्फडिंग के बाद हम वहां पर टेम्परेरी वर्क प्लेटफॉर्म्स लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दैट इज वेरी ट्रिकी। यहाँ पर आप टेम्परेरी प्लेटफॉर्म्स भी लिख सकते हैं, वर्क प्लेटफॉर्म्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, और टेम्परेरी वर्क प्लेटफॉर्म्स भी लिख सकते हैं। अभी इन तीनों का मतलब क्या है? देखिए हम कहते हैं स्कैल्फडिंग होना है एक तरीके का, जैसे हम बहुत लंबे लंबे वुडन के जो हैं वो स्कैल्प्स लगा देते हैं और वहां पर खड़े होके मेंटेनेंस होती है या पेंट होता है,
उन चीजों की हम बात करते हैं, प्लेटफॉर्म्स खड़े कर देते हैं हम लोग। तो टेम्परेरी दैट मीन्स वो परमानेंट नहीं होते, वर्क काम करने के लिए लगाए जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स की ढांचे खड़े किए जाते हैं। अगर आप काम करने वाले ढांचों की बात करते हैं तो भी आप वर्क प्लेटफॉर्म्स लगा पाएंगे। अगर आप टेम्परेरी प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं दैट मीन्स थोड़े टाइम के लिए लगाए गए प्लेटफॉर्म्स, तो भी आपका जो आंसर है दैट विल कंसिडर्ड एज राइट आंसर। यस जगजीत सिंह, यू रेज योर हैंड। Do you have any query? Okay. Now, 19th देखिए, reduce the likelihood of injury that is by using dash. अगर इंजरी होने के चांसेस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और हम सेफ्टी नेट्स लगा सकते हैं। द आंसर इज सेफ्टी नेट्स। 19th है सेफ्टी नेट्स। उसके बाद 20th लैडर्स, पौड़ियों के बारे में, सीढ़ियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एम्प्लॉयड। यस मैम इसके एम्प्लॉयड है ना आंसर? आपके आंसर्स ऑलरेडी आपके पास हैं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू प्लीज। ओके। 20th है दीज शुड ओनली बी यूज्ड फॉर डैश विच शुड नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम। ये जो है यूज किए जाने चाहिए सिर्फ इस काम के लिए, अदरवाइज, एक मिनट, यस ये जो है सिर्फ मेंटेनेंस के काम के लिए यूज करने चाहिए। मेंटेनेंस वर्क विच डज नॉट टेक अ लॉन्ग, ज्यादा लंबे काम के लिए नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस के थोड़े टाइम स्पैन के लिए ये जो लैडर्स हैं उनको यूज कर लेना चाहिए। यस मनीषा, यू रेज योर हैंड। मैम मैंने ना यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन मेंटेनेंस लिखा था, वो नहीं ठीक था। यूज्ड फॉर मेंटेनेंस वर्क, शॉर्ट ड्यूरेशन मेंटेनेंस काम की तो हमने बात ही नहीं की, वर्क तो हमने छोड़ दिया, तो वो इनकम्प्लीट है। शॉर्ट ड्यूरेशन मेंटेनेंस वर्क लिखेंगे तो हमारे 3 वर्ड से ज्यादा हो जाएंगे। सो इट इज अ स्मार्ट वर्क टू लीव शॉर्ट ड्यूरेशन मेंटेनेंस वर्क को चूज कर लीजिए। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन भी लिखेंगे तभी बीच में हाइफन है ना, वो तो 3 वर्ड इंक्लूड होंगे ना। यस they will include, they will consider it as 4 words, 1 2 3 4, short duration maintenance work. This is the reason it is advisable to choose the most suitable words as your answer, that is maintenance work. But अगर बीच में 2 words के बीच में हाइफन हो तो 1 word इंक्लूड होता है ना। ये किसने कह दिया आपसे? मैं मोस्टली लिसनिंग में ऐसा ही होता है कि 2 वर्ड्स के अगर बीच में हाइफन होता है तो उसको हम 1 वर्ड इंक्लूड करते हैं। वो लिसनिंग में होता है, रीडिंग में तो नहीं होता है। नॉट इन रीडिंग एंड राइटिंग। ओके मैम। राइटिंग में तो आप सोचिए भी मत कि आप अगर हाइफन वर्ड्स लगा दे हैं तो वो आपको सिर्फ एक वर्ड चूज करेंगे, दे विल कंसीडर इट एज 2 वर्ड्स। हाँ जी बोलिए अर्पण। मैम यहाँ पे मैम शॉर्ट ड्यूरेशन हम इसीलिए नहीं लिख सकते क्योंकि मैम क्वेश्चन में लिखा है मैम यहाँ पे डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैम वो सिनोनिम जैसा ही हुआ ना। यस दिस इज द रीजन आल्सो कि आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इसका ऑपोजिट दे दिया है लॉन्ग टाइम के लिए, तो यूज ही नहीं करना। वेरी गुड। अभी देखिए 21st टेकिंग शुड बी प्रोवाइडेड, सॉरी ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन देयर डैश। उनको जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर देनी चाहिए। किस चीज की? इन देयर सिलेक्शन। सिलेक्शन के टाइम पे ट्रेनिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज एंड यूज रेगुलर डैश ऑफ लैडर्स। और क्या करनी चाहिए? जो सीढ़ियां हैं उनकी रेगुलर इंस्पेक्शन करनी चाहिए। अगर कोई सीढ़ी है जो खराब है, जो आगे जाके किसी वर्कर के लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है, उसको चूज नहीं किया जाए, उसको अलग कर दिया जाए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग सीढ़ियां जो है, लैडर्स जो हैं, उनको यूज करना चाहिए। दिस इज द solution of your reading. आगे चले। Any questions from your side? मैम लास्ट हम जाना, लास्ट 22nd है use regular inspection. रेगुलर इंस्पेक्शन, थोड़े थोड़े टाइम बाद इंस्पेक्शन होनी जरूरी है लैडर्स की, सीढ़ियों की, कि कोई खराब सीढ़ी जो है वो यूज ना हो।
सिर्फ सही सीढ़ियां हैं जो यूज हो ताकि किसी कोई लेबरर को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई डाउनफॉल नहीं आए। क्लियर नाउ? मैम आंसर क्या था इसका? बेसिस टू इंश्योर के टू इंश्योर? ना इंश्योर ना बेसिक्स टू इंश्योर, इसका आंसर था इंस्पेक्शन। थैंक यू मैम। Now we are moving towards the next part of your session, that is writing. हम लोग writing करने वाले हैं। Writing task 2 we are going to consider it. Jagjit Singh, you are giving a message that we are not getting your voice. Please make sure you rejoin the session. If you are getting our voices, please rejoin your session. Maybe there is a problem from your side regarding internet. Please rejoin. Now, we are going to see writing task 2. First of all, as we have already done yesterday, कि 4 चीजें हैं that the examiner is going to see. Mute yourselves, please. The examiner is going to see when your examination paper will be in front of that examiner. 4 चीजें वो check करेगा. The first thing is task achievement and response. That means 2 kind of structures are there in your writing task 2. The first one is the introduction. That means structure of introduction that consists of background statement, paraphrasing of the question, and last thesis line. If we talk about the structure of the essay, that should be completed. That means there should be an introduction, then body paragraph 1, then body paragraph 2, and then conclusion. If yes, you will get the marks of task achievement and response. If we talk about coherence and cohesion, that means there should be a connectivity. There should be a connection between the ideas that you are providing in your essay 2. Lexical resource means there should be a list of vocabulary words that are you properly sure of. कभी भी ऐसा नहीं करेंगे हम कि we Google words and we just put those words into our writing task, because somehow you will lose your marks, lose your band scores if those words are not meeting the proper criteria or not suitable for in the context of your writing task. By grammatical range, we mean there are a number of things that comes under grammar, not only tenses, but uses of adverbs, adjectives, verbs, types of sentences, types of formats, etc. By accuracy, we mean there should not be any kind of spelling mistake in your writing task 2. Now, if we talk about a higher band score essay structure, that means we are talking about 8 bands, 8.5 bands, and even 9 bands. Now, introduction is, first of all, it consists 3 things. The first one is background information. That means you are going to write down first and second line of your introduction that should be directly related to your topic. The words that you use should be taken from the statement itself. That is the reason it has a proper connectivity to the topic. Rephrasing the question means you are going to write down the question itself, but the meaning of the question is same with different words. In the third part of introduction will be known as thesis statement, in which you are going to write down your own perspective that what you are going to elaborate in your essay, whether you are agree with the statement or you are disagree with the statement. Are you explaining the advantages of something? Are you explaining the disadvantages of something? Are you going to explain causes, effects, or solutions of something? What you are going to provide to the examiner, you are going to write down in your thesis statement. Now, if we talk about body generally contains body paragraph 1 and body paragraph 2, but there are very rare topics in which you are going to find out body paragraph 3rd. So always try to complete your ideas in first and second body paragraph. It is advisable to do so. First of all, after completing the introduction, you are going to make a list of the points.
For example, 5 to 6 points. Whatever comes to your mind. After the list is completed, you are going to pick up the most strong points as your body paragraphs, and first strong point you are going to introduce in the first line of your body paragraph. Then you are going to give the explanation or detail of that point, and in the last you are going to exemplify, or you can say give example of that point. The same format will be in body paragraph 2. Second point, you convert it into body paragraph, introduce the point, then give detail of that point, and in the last you are going to give the example of that point. Now, last part of your writing task is conclusion. In conclusion, you are going to just write down what you have already explained in your introduction and body paragraphs. It is advisable not to write down any new point in your conclusion. So you should just wind it up what you have written in just 30 to 40 words, maximum 40 to 45 words in your writing task. This is the question or statement of today. ये आज की statement है. देखिए क्या कह रही है जो statement है. First of all, we are going to find out the question. In the past, most people used to travel to their place of work. पहले क्या होता था कि ज़्यादातर पे सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल करके जहाँ पर वो जॉब करते हैं उस जगह पर जाते थे. With increased use of computers, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई, कंप्यूटर्स का यूज बढ़ा, द इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स आ गए एग्जिस्टेंस में. मोर एंड मोर पीपल आर स्टार्टिंग टू वर्क फ्रॉम होम. ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो घर पे बैठ के काम करने लगे हैं. दैट मीन्स they are connecting with their clients, they are connected with their companies via internet, but they are working from home. What are the advantages and disadvantages of this development? क्या advantages है ऐसा करने की और क्या disadvantages है ऐसा करने की, ये आपको explain करना है. अभी क्या है, in this kind of a essay, चूज द कीवर्ड्स. देखिए चूज कीजिए आपके कीवर्ड्स क्या है. कीवर्ड्स सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें है एंड. दैट मीन्स इसमें हम वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हम बनाएंगे. दैट मीन्स बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट इज ऑफ एडवांटेजेस, बॉडी पैराग्राफ सेकेंड इज रिलेटेड टू डिसएडवांटेजेस. उसके बाद सबसे पहली चीज हम कंपेयर कर सकते हैं पास्ट और प्रेजेंट को. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स इन दिस. कीवर्ड्स आर पास्ट, मोस्ट पीपल, ट्रेवल, वर्क, increased use of computers, internet, smartphones, home, from home. These are the major words that you are going to write down in your introduction. पहले तो जो हमने ये जो वर्ड्स चूज किए हैं इनको ही बना के मिला के, इसमें से 2 वर्ड्स चूज कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, इट्स अप टू यू. आप उनकी एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट बनाते हैं. दैट विल वर्क एज एन फर्स्ट इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर. देखिए कहा जाता है, आपने सभी जो है एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो जीडी के स्टूडेंट्स हैं, ये कहा जाता है, आपने सभी ने सुना होगा, स्कूल में भी कहा जाता था आपके, कि जब भी कोई जो टीचर है वो आपका पेपर पढ़ते हैं या आपकी लिखा हुआ ऐसे पढ़ते हैं तो पहली 2 या 3 लाइंस पढ़ के एक इम्प्रेशन बन जाता है कि ये जो बच्चा है वो इतने मार्क्स लेने वाला है. स्कूल में ये माना जाता था. द सेम थियोरी वर्क्स इन द एवरी फील्ड इन द लाइफ. अगर आप एक रेज्यूमे पढ़ते हैं तो रेज्यूमे का फर्स्ट पैराग्राफ ही आपको बता देता है कि एक्चुअली द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग हैविंग हाउ मच कैपेसिटी टू वर्क, राइट. ऐसे ही आपका जो ऐसे है उसके बैकग्राउंड स्टेटमेंट जो है वो
एक एग्जामिनर को हिंट दे देती है कि ये जो कैंडिडेट है वो कितने बैंड स्कोर्स वाला कैंडिडेट है, कितनी मिस्टेक्स हैं, कैसी वोकैबुलरी है, कैसे आइडियाज जो हैं वो आगे एक्सप्लेन होने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट ये एक्सप्लेन कर देती है टू योर IELTS एग्जामिनर। So it is very very important to write down these first and second line correctively in your writing task too. Second आता है rephrasing, जिसमें हम इन वर्ड्स को बदल देंगे। जब हम इन वर्ड्स को बदलेंगे the meaning should not be changed. मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? सिनोनिम्स यूज करेंगे हम। थर्ड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स और द एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, एंड की जगह वर्ड यूज कर दिया हमने एज वेल एज, डिसएडवांटेजेस आर इलैबोरेटेड और आर एक्सप्लेन्ड इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स और अपकमिंग पैराग्राफ्स। वर्ड्स आपके होंगे जो आप करना चाहें। Now, we are going to have the brainstorming regarding this. अभी हम brainstorming करने वाले हैं। हम चूज करने वाले हैं पॉइंट्स। एडवांटेजेस क्या हैं? जो लोग घर पे बैठ के काम करते हैं, ऑफिस का काम घर बैठ के करते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, ये चीज हम सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले हैं। दिस इज एन ओपन डिस्कशन, एवरीवन कैन स्पीक बट वन बाय वन। खलबली नहीं मचानी है, एक एक करके आप आंसर्स देंगे। हाँ जी मैम, फर्स्टली सेव टाइम सेविंग हो जाती है। क्या हो जाती है राजवीर? सेव हो जाता है, टाइमिंग सेव हो जाता है मैम। जैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर वो घर पे बैठ के काम करते हैं तो उनका वो टाइम सेव हो जाता है। कम्यूट करने का टाइम जो है वो सेव हो जाता है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से, राइट? यस मैम। सेकंड पॉइंट, मोरओवर मैम वो अपना टाइम एक एक करके बोलेंगे। हाँ जी बोलिए मैम। फर्स्ट पॉइंट द एक्सप्लेनेशन है, मोरओवर दे कैन यूटिलाइज देयर वैल्यूएबल टाइम फॉर देयर फैमिली पर्पस एज वेल एज अदर फॉर अदर वर्क मैम। ओके, मोर टाइम फॉर फैमिली। फैमिली एनवायरनमेंट में रहते हैं तो मोर टाइम जो है वो फैमिली को दे सकते हैं, राइट? in any time they can ट्रैफिक रिड्यूस एक एक करके आप बोलेंगे, एक एक करके। ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगा, यस, रिडक्शन इन ट्रैफिक। in any time they can work, as well as accidents also will remove. ओके, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, विल नॉट बी रिमूव्ड। ट्रैफिक और एक्सीडेंट्स, इसमें हम दोनों का एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस मैम। यस, एनी अदर पॉइंट फ्रॉम योर साइड? एक एक करके बोलेंगे हम। It will be beneficial not only for employees but also for employers. How? As employees can save their time as well as their money at the cost of commuting. However, the employers, they can also save, eliminate the infrastructure. For example, if they are the highest more employees in the office, it means that they require more infrastructure. So it will save also financially. It is beneficial for both of them. Okay, good. Employers के लिए भी and employees के लिए भी, दोनों के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। उनको एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है जी, एम्प्लॉइज के लिए, नॉट फॉर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप बताइए? पोल्यूशन कंट्रोल होगा। इतनी दूर नहीं जाना हमें मैम। कैन वी से कि वो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कुछ नया स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए? व्हाट द टाइम दे आर स्पेंडिंग इन ट्रैफिक एंड अदर्स, yes, they can improve themselves, they can enhance the skills. They can join different kind of courses, online courses by that time. They can join certifications. They can do a number of things by that time which they waste while commuting. बिल्कुल सही है point. Next बताइए और कुछ? प्रोडक्शन will be high मैम। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलेंगे हम। प्रोडक्शन will be high मैम। How? मैम जैसा वो टाइम यूटिलाइज करते हैं कि आने और जाने में, मैम जैसा वो मोर एक्टिव होंगे घर पे वर्क करने पे, तो मैम वो ज्यादा वर्क करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी।
कैजुअली भी वर्क कर सकते हैं, लाइक ऑफिस की ड्रेस वगैरह, फॉर्मल ड्रेस वगैरह ना पहनते हो। फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं। एक तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग आप में से किसी ने बोला था कि जब दिल करे तब वो काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग। उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, घर पे कैसे भी बैठ के वो काम करे, देयर इज नो वर्क कोड जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ? हेलो मैम। मैम एम्प्लॉयर्स स्पेलिंग गलत। यस यस सॉरी, इनहांस द मैम। इनहांस के तो सही है, एम्प्लॉयर्स के गलत है। ओके मैम प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग आल्सो बेनिफिशियल। भाई मेरी जो एक्चुअली लैपटॉप है दैट इज फॉर इट्स ऑलराइट मैम, तो मुझे जो है वो डेस्कटॉप से काम करना मुश्किल लगता है। ओके बोलिए और कुछ? मैम दे आल्सो हैव एडिक्वेट टाइम फॉर द लेजर एक्टिविटीज। लेजर एक्टिविटीज के लिए उनके पास जो है वो टाइम बचेगा। आप लेजर एक्टिविटीज के साथ साथ हॉबीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके मैम। एनी अदर पॉइंट? मैम कोई बीमारी या कोई डिजीज नहीं होगा? एक मिनट बेटा, नितिशा वर्मा कुछ बोल रही थी। बोलिए नितिशा, थोड़ा लाउडली बोलिए प्लीज। मैम it's easy for them to spend a quality time with their family members. हो गया, more time for family, it comes under second point। हाँ जी अभी बोलिए, और कौन बोल रहा था? मैम ड्यू टू करंट सिचुएशन जैसे पैंडेमिक है कोविड-19, तो इसके करके भी हम घर पे काम कर सकते हैं। यस आप कह सकते हैं ये सेफ है। सेफ है हाँ। यस एग्जांपल डाल सकते हैं ना, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप इसके कि कोई भी ऐसा वेदर के लिए सेफ भी लिख सकते हैं आप कि एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है तो सेफ्टी है, कोई पेंडेमिक है तब सेफ्टी है, राइट? यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स। और कुछ? एनी अदर पॉइंट फ्रॉम योर साइड्स? That's it, ma'am. Now we are moving towards the another side. Disadvantages क्या है? मैडम disadvantage में face to face interaction will be removed, ma'am. No face to face interaction. Ma'am, less physical activity. Okay, let me write it down. Ma'am, can we contradict the advantages as well? करते हैं मैम। एक मिनट देखिए, आप तो एक एक जने हैं है ना, जो दिमाग में आता है फटाफट से बोलना शुरू कर देते हैं, मुझे लिखना पड़ेगा। सो गिव मी सम टाइम। लेस फिजिकल एक्टिविटी। हाँ जी। Can we contradict the advantages as well? हाँ मार्क्स कटवाने हैं तो जरूर। देखिए जब मैडम लॉस है प्रोडक्शन का डिसएडवांटेज। आप कह सकते हैं No, it will be no loss, ma'am. एक्चुअली ये कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है। हेल्थ इशू भी लिख सकते हैं ना? कैसे? लॉस प्रोडक्शन ऐसे है जैसे कि कोई मशीनरी खराब है, अगर इंजीनियर कोई पता है तो लेबर तो उसको ठीक नहीं कर सकती, तो घर बैठे वो कैसे लेबर को समझाएगा? वो तो समझा ही नहीं सकता लेबर टाइप बंदे को, वो तो सामने खड़ा होगा तो बताएगा उसको, तो इसमें तो लॉस ही है प्रोडक्शन। आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं ये। ओके वी कंसीडर इट एज अ पॉइंट ऑफ डिसिप्लिन। मैम फर्स्ट पॉइंट लैक ऑफ डिसिप्लिन। एक मिनट लैक ऑफ डिसिप्लिन, गुड पॉइंट, वेरी गुड। मैम कॉन्फिडेंस लो होगा ना, तो घर क्या होगा? आउटसाइड का कॉन्फिडेंस। मैम क्या होगा जाएगा कॉन्फिडेंस को? डिक्रीज हो जाएगा। कैसे बताइए? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ जी बोलिए। मोटिवेशन लो हो जाएगा मैम कॉन्फिडेंस। क्यों लो हो जाएगा? हम घर पे जब स्टडी करेंगे, बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ न्यू सीखेंगे, अदर स्टूडेंट्स से टॉक करेंगे, घर पर बैठ के शाइनेस आएगी। आप इसको लिख सकते हैं सोशल इंटरेक्शन का एब्सेंस। ओके यस, सोशल इंटरेक्शन में सभी कुछ आएगा, लेस सोशल इंटरेक्शन में सब कुछ जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं इन चीजों की। ठीक है, हाँ जी। और कुछ? और कोई पॉइंट? एम्प्लॉयज विल बी लेजी मैम, एम्प्लॉयज विल बी लेजी।
और कुछ लेजी आ जाएगा। बैकग्राउंड डिस्टर्बेंसेस जो मैं फेस करती हूँ आप लोगों से। डिस्ट्रैक्शंस। ओके, लेजी एटीट्यूड जो है वो आ जाएगा, राइट। मैम आप डिस्ट्रैक्शन फेस करते हैं स्टूडेंट से। बैकग्राउंड वॉइसेस दैट आर डिस्टर्बिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। आप रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको बहुत सारी जो है वो बैकग्राउंड नॉइजेस सुनेंगी। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज टोल्ड यू पीपल कि प्लीज म्यूट पे हो जाइए। हाँ जी, और कुछ? मैम कंसंट्रेशन नहीं होता इजीली। यस। ओके, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, बताइए मुझे। मैम जैसे घर पे होते हैं, वो कोई भी काम करना होता है, इजीली कंसंट्रेशन नहीं होता घर पे। जैसे बहुत सारी नॉइजेस होती है और कोई भी काम हम करने लगते हैं, कभी हम मतलब कोई भी मैम रीजन लगा सकते हैं, जैसे कोई भी रिलेटिव आ गया तब भी कंसंट्रेशन नहीं होता। ओके ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਫੋਰਸ এনवायरमेंट नहीं ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। नो पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ वर्क, कोई ना तो वर्क का कोई जो है वो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट बनता है और ना ही कोई फॉर्मेट बनता है। अगर किसी को कोई काम है तो आपको बोल देंगे कि आप जो है वो बाद में ये काम कर लीजिए अपना ऑफिस वाला, पहले ये काम कंप्लीट कर दीजिए। One disadvantage is also there, ma'am, that we can't update ourselves. That comes under less social interaction। उसमें आएगा ये less confidence होना, अपडेशन ना होना। स्टैग्नेशन आप लिख सकते हैं, स्टैग्नेशन आ जाती है। स्टैग्नेशन इज द वर्ड कि आप कुछ नया नहीं सीखते हैं, आपके पास जो है आप सिर्फ उसी को जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे। बिकॉज घर से बाहर निकलेंगे तो आप नई नई चीजें सीखते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, कोलीग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बट while you are in gaining knowledge, yes, while you are on the spot, आप एक ही जगह पे बैठ के रोज जो है इंटरेक्ट करते हैं, अपने घर से इंटरेक्ट करते हैं, तो बाय दैट टाइम यू विल बिकम वेरी हैबिचुअल ऑफ यूजिंग दिस जो थिंग्स। एलिमेंट्स वाला पॉइंट है वो लेस फिजिकल एक्टिविटी में आएगा। कौन सी? मैम एलिमेंट्स वाला, डिजीजेस वाला वो उसमें आ जाएगा। यस, आप एग्जांपल दे पाएंगे। जो मैम कॉन्फिडेंस वाला है, जो कॉन्फिडेंस लेस हो जाएगा, वो आएगा लेस सोशल इंटरेक्शन में। यस। ओके मैम, वर्क पेंडेंसी भी ऐड कर सकते हैं ना? कैसे? वर्क पेंडिंग रह जाता है, जैसे आज हमने कहीं पे जाना है, हम फिर भी उस ऑनलाइन वर्क को छोड़ के अपना कुछ और जो हमें काम होगा वो करेंगे, एंड देन पेंडिंग वर्क होता जाएगा हमारा। यस, आप उसमें लेजी एटीट्यूड में इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि लेजीनेस आ जाती है जब आप ऑफिस पे होते हैं। यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्क बाय दैट टाइम, बट व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, कहीं ना कहीं एक लेजी एटीट्यूड जो है वो आ जाता है कि यस, आई एम नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू कंप्लीट इट टुडे, I will complete it tomorrow, right? Okay. Yes. Any other? Ma'am, what is the meaning of stagnation? Stagnation होता है ठहराव आ जाना, कुछ नया ना सीखना, जो चीज आपके पास है आप उसी से काम चला रहे हैं। Yes, सुखप्रीत, you raised your hand. Okay, ma'am. ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਐਸੇ ਪੜਿਆ ਥਾ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮੈਮ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, लिख सकते हैं आप ऐसा। मैम पंक्चुअलिटी लिख सकते हैं कि कौन से पॉइंट में डाल सकते हैं? हम पंक्चुअल नहीं रहते अपने काम को लेकर। क्यों नहीं लिख सकते? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। हम डिसिप्लिन वाले में आ जाएगा वो। नहीं, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी अलग चीज है, उसको अलग पॉइंट बनाएंगे। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आप दो चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मैम। सुपरविजन भी नहीं होगी फिर? सुपरविजन लिख दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, बट सुपरविजन होती है, इन चीजों की सुपरविजन होती है। ऐसे तो कोई भी काम नहीं करेगा। जो उनके सेशंस हैं, जो वो जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, राइट? यस। तो मेरा जो सेशन है दैट विल बी रिकॉर्डेड एंड गिव द फीडबैक इज गिवन टू द टीम। जो टीम है उसके पास फीडबैक जाएगी, राइट? सो डिप्रेशन वाला करेगी। यस मैम, डिप्रेशन वाला पॉइंट कैसे एलैबोरेट करेंगे मैम? आप ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन वाला पॉइंट कैसे एलैबोरेट करेंगे? मैं करने वाली हूँ अरुण सर। मैंने रीड आउट किया हुआ है
ओके सुखप्रीत, थैंक यू। करिए, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी बोलिए। ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮ ਵਰਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਅਲਾਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਮ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। health issues like weak eyesight, headache and other. Okay. एक इसका बहुत प्रोमिनेंट रीजन जो है वो ये है, आप लोगों के रीजंस भी सही हैं, एक और रीजन है इसका। देखिए, जब हम बाहर निकलते हैं दैट मीन्स वी आर इंटरेक्टिंग, राइट। हम लोग बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल कहा जाता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। दैट मीन्स जो अकेला रहना है, लोनलीनेस है, दैट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। जब आप अकेले रहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप अपने सैडनेस भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप विद इन उस इंटरेक्शन के बीच में ही रह जाते हैं कि आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना है, आपको किसी के साथ मीटिंग अटेंड करनी है। जहां पर आप बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक आप वहीं पर बैठे हैं। दैट मीन्स आप किसी कलीग को नहीं मिल रहे, आपकी कोई ब्रेक नहीं हो रही है। जब आप काम से भी ब्रेक लेते हैं तो वही फैमिली 4-5 जो चेहरे हैं वो आपको दिखते हैं। ऐसा हफ्ता 10 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डेफिनेटली जब आप यही चीजों को प्रोलॉन्ग करते हैं तो आपका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप लोनली फील करने लगते हैं और डिप्रेशन जो है वो वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दिस इज द बेसिक रीजन कि लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ज्यादा तौर पे, मैं ये नहीं कह रही कि सभी, ज्यादा तौर पे जो लोग हमेशा ही वर्क फ्रॉम होम करते हैं। एनी अदर पॉइंट फ्रॉम योर साइड्स? लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगी आप इस चीज को? कर पाएंगे? मतलब मोटिवेट नहीं होंगे जो घरे बैठ के काम करेंगे। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अभी आपको देखिए, मोटिवेट कैसे होंगे हम कैसे मोटिवेट होते हैं? फैमिली मेंबर्स भी मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। कितने बीच में नहीं बोलेंगे आप, म्यूट कर लीजिए। आरवी म्यूट योरसेल्फ। मैडम एक क्वेश्चन है जी छोटा जिहा मेरा। हाँ जी हाँ जी, पूछिए सर। मैडम मैं पूछना कि जिद्दां ਇਹ ਆਇਲਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? सुमित सर, आपकी कंफ्यूजन जो है वो जायज है। जो आइल्स है वो बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी क्रिएटिविटी को एग्जामिन करता है। जब आप दूसरे टेस्ट देते हैं उसमें ज्यादा तौर पे जो है वो आपको टिक लगानी होती है। 4 ऑप्शंस होती है, आप टिक लगा देते हैं। दैट्स इट। आपको लिखने के पेपर्स, 1-2 पेपर्स जो है वो लिखने के होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपकी उन एबिलिटीज के साथ साथ और एबिलिटीज को भी चेक किया जाता है। देखिए, जब आप पेपर देते हैं और कोई पेपर देते हैं उसमें लिसनिंग होने के चांसेस कम होते हैं, उसमें राइटिंग हो सकती है, उसमें जो है वो स्पीकिंग इंटरव्यूज भी होती हैं, वो बाद में होती हैं। जब आपका राइटिंग खत्म हो जाता है, आप ज्वाइन कर लेते हैं या आप सिलेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैच भी करती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आइल्स को अलग भी करती हैं। एज पर इन आइल्स इसका कोई भी सिलेबस नहीं होता है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये बुक खरीद ली तो आइल्स हमें आ जाएगा। नथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप को कितना इम्प्रूव करता है और कैसे इम्प्रूव करता है। दिस इज द बेसिक रीजन। यस रिम्पी, यू रेज्ड योर हैंड। यस जगजीत सिंह, बोलिए। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, इस आइल्स एग्जाम मतलब दिए, मतलब फर्स्ट टाइम अगर मैं दूंगा और नेक्स्ट टाइम उसमें मेरा बैंड नहीं आया तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको कितने दिन बाद दे सकता हूँ मैम एग्जाम को? चाहे आप 4 दिन बाद दे दीजिए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। चाहे आप 4 साल बाद दे दीजिए। ओके। और उसमें मैम ऐसा होता है इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, फिर सबके ही देना होता है इकट्ठे चारों के? इंडिविजुअल नहीं होता है, एक मॉड्यूल का इंडिविजुअल नहीं होता है। अगर आपके बाय चांस एक मॉड्यूल में भी कम हो गए पेपर, आपको फिर से 4 मॉड्यूल्स का देना पड़ेगा। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट। वैसे और मैम इजी कौन सी होती है, एकेडमिक या जनरल में? डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है।
मेरी मैम जनरल है मैम। तो फिर आपको 8,777 चाहिए होंगे, दैट मींस 8 इन लिसनिंग एंड 7 नहीं इन मैम अदर इतना नहीं, मॉड्यूल्स। ओवरऑल 5 एंड 5.5 भी आएगा तो मैम चलेगा, कोई इशू नहीं। फिर जगजीत सिंह आप तैयारी कीजिए, अगर 5 बैंड से आपका काम चल जाएगा तो दिस इज द बेस्ट थिंग, राइट? कितने टाइम में कवर हो जाएंगे मैम? मैम प्लीज वन क्वेश्चन मोर। कुछ नहीं कह सकते हैं हाउ जगजीत मच सिंह, गैप यू इज हैव टू एक्सेप्टेबल आफ्टर एक मिनट अरुण ग्रेजुएशन? सर, एक मिनट, लेट मी टॉक टू हिम, जस्ट अ मिनट। जगजीत सर आप टीम को फोन कीजिए, दे विल बेटर गाइड यू, ठीक है इस चीज से जी। यस अरुण सर, यू वांट टू से समथिंग, बोलिए। I want to ask how much gap is acceptable after graduation? आपके लिए भी सेम आंसर है, आप टीम को फोन करेंगे, दे विल बेटर गाइड यू। यस कोमल कौर। ह्यूमन की जगह हम होमो सैपियन लिख सकते हैं उसका साइंटिफिक नेम? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। यस रिम्पी, यू रेज योर हैंड। मैम जैसे प्रोडक्शन एडवांटेज आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके बच्चों की आवाज आ रही है। यस हाँ जी बोलिए। ओके कोमलप्रीत। मैम हाँ जी बोलिए रिम्पी। जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज को हमने एडवांटेज में लिखा है तो इसको हम डिसएडवांटेज में थोड़ी ना लिखेंगे इस पॉइंट्स को। देखिए क्या होता है, हमने एक लिस्ट बनाई है, राइट? व्हेन यू मेक अ लिस्ट, जरूरी नहीं कि आप उसी पॉइंट को उधर भी उठाएंगे उधर भी उठाएंगे। जहां पर ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगे आपको, अगर आपको ये एडवांटेज स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगती है तो उसमें एक्सप्लेन कर दीजिए, लेकिन अगर आप एडवांटेज में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्राइब इट इन डिसएडवांटेज, ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपोजिशन नहीं होगी, अगर अपोजिशन नहीं होगी तो आपके नंबर नहीं घटेंगे, सीधी सी बात। वन क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए सिमरजीत, आप भी पूछ लीजिए जल्दी से। एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसको 50-50 लिखेंगे जी, हम दोनों साइड जाना हो। निको प्लीज गल कर माड़ा रह गया, निको क्यों कर दी हुन्नी है? आप बीच में नहीं बोलिए आरवी, आई हैव टू रिमूव यू। देखिए सिमरजीत क्या है कि परसेंटेज में नहीं जाते हैं, वैसे आपकी बात सही है, एक पॉइंट उधर एक पॉइंट उधर बैलेंस करना जरूरी होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि 50-50 आप लिखिए। हाँ जी ठीक है। अगर ओवरवे का क्वेश्चन आ जाए, एडवांटेजेस ओवरवे डिसएडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस ज्यादा होती हैं डिसएडवांटेजेस से। अगर एंड लगा हो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो हम दोनों को 50-50 लिखते हैं, ठीक है? क्लियर नाउ? अगर हम पार्शली एग्री हो तो कितना कितना लिखेंगे? अगर पार्शियली एग्री हो तो दोनों को एक्सप्लेन करेंगे बराबर बराबर, और कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि इसी चीज के कारण ये पार्शियली एग्री करते हैं। सिंपल। ओके मैम सॉरी टू इंटरप्ट, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, रियली सॉरी। बोलिए। नहीं बोलिए। मैम एकेडमिक 1 राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक का कब डिस्कस होगा? वो मुझे भी नहीं पता रवि सर। ओके मैम, इट्स ओके, दिस इज द डिसीजन ऑफ द टीम, ठीक है? हम डिसाइड करते हैं उसके बाद कि नेक्स्ट सेशन किस चीज का होगा, तो उसके बाद होता है डिसाइड। ओके मैम, थैंक यू फॉर दिस। हेलो मैम। यस बोलिए। शुड वी यूज एग्जांपल इन बोथ पैराग्राफ? देखिए इट इज एडवाइजेबल, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक पैराग्राफ में आप जरूर दें एग्जांपल। इट इज एडवाइजेबल कि आप दोनों में दें, लेकिन कई बारी दिमाग में स्ट्रक नहीं आती है, नहीं होता है स्ट्रक, तो इतना घबराने वाली बात नहीं होती है, ठीक है? बिकॉज so should we use the okay passage with the first and foremost or to the main points? For example, the key reason is that, or the key advantage of yes working from is the time saving. How should we write the first sentence? मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ, अगर आप सभी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं फिर मैं आपको आंसर दिखाने वाली हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम जैसे एग्जांपल देके उसके बाद भी हमने जो पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है पॉइंट, उसको उसकी एग्जांपल दे दी, तो उसको बाद में एक पॉइंट मतलब कवर करना होता है, जो एग्जांपल से ही हम बस भी समझे कि हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया। Why you are so confused? आप खुद ही कंफ्यूज हैं, आप क्या पूछ रही हैं? दोबारा पूछिए। मैम जैसे मतलब कि एक पॉइंट मैंने एडवांटेजेस का लिखा, उसकी मैंने एग्जांपल के साथ उसे ज्यादा मतलब और डिटेल दे दी। अच्छा। उसकी एंडिंग करने के लिए मैम मतलब कि जो मतलब वहीं पे एंड हो जाता है उसका, मतलब कि एक एग्जांपल दे दी, एक पॉइंट को एक एग्जांपल के साथ कवर कर दिया, दैट वाज फिनिश ऑन दैट
पॉइंट। मनप्रीत देखिए होता क्या है, हमने स्ट्रक्चर फॉलो की थी जब हमने स्ट्रक्चर का आपको स्लाइड दिखाया था। दैट मीन्स सबसे पहले आप ये लिस्ट जो हमारी लिस्ट बनी है ना, उनमें से हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। जब हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकालते हैं उसके बाद वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दोज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इनटू बॉडी पैराग्राफ्स। जब हम बॉडी पैराग्राफ में उनको चेंज करेंगे तब क्या करेंगे, पहली लाइन में तो हम लिखेंगे कि ये हमारा पॉइंट है, उसके बाद हम उसी पॉइंट को डिटेल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम डिटेल के बाद एग्जाम्पल दे देंगे और वो बॉडी पैराग्राफ खत्म हो गया। फिर हम दूसरा उठाएंगे, पहली लाइन में हम पॉइंट लिखेंगे, फिर हम इसकी डिटेल दे देंगे एंड इन द लास्ट हम उसकी एग्जाम्पल दे देंगे। दैट्स इट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलिए, shall we move towards the writing description? Yes ma'am. Okay, thank you. Now we are moving towards the description of the writing. देखिए क्या कहा है उन्होंने। The way in which we work has changed a great deal in recent years. तरीका हमारे काम करने का बहुत ज्यादा बदल गया है। अगर हम recent years की बात करें, कुछ पिछले सालों की बात करें, whilst that means whether some people still travel to their place of work each day, आज भी कुछ लोग जो हैं वो अपने काम पर जाते हैं हर एक दिन। Others have the option to work from home, कुछ लोग जो हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो घर पे बैठ के काम करें। This has all become possible since the birth of the internet and smartphones. ये जो है तभी पॉसिबल हो पाया है जब से स्मार्टफोन्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आ गए हैं। उसके बाद which enable workers to be in constant connect with their colleagues and clients all over the world. ऐसा करने से जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो एक लगातार कांटेक्ट में रहते हैं अपने कोलीग्स के साथ थ्रू मीटिंग्स, थ्रू पीपीटीज, थ्रू आप कह सकते हैं कॉलिंग्स या थ्रू वॉइस और वीडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो कॉल्स। अपने क्लाइंट्स के साथ भी वो ऐसे ही कनेक्टिव रहते हैं। बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू दिस न्यू डेवलपमेंट आर इलेबोरेटेड इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। हम दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीजों की, इस डेवलपमेंट की, आने वाले पैराग्राफ्स में। दिस इज द थीसिस लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज टू इनिशिएट द गिवन व्यू। जो हमें ये व्यू दिया गया है उसको शुरुआत करें तो दिस इज द कनेक्टर। देयर आर प्लेथोरा ऑफ एडवांटेजेस टू द पीपल बीइंग अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम। बहुत सारी प्लेथोरा होती है, बहुत सारी या नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं। मेन एडवांटेज इज दैट इट गिव्स वर्कर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर वर्किंग लाइफ्स। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। दैट मीन्स उनकी मर्जी होती है कि कौन सी आवर्स में वो काम करना चाहते हैं, कौन सी आवर्स वो वीक जो है वो ऑफ लेना चाहते हैं। दिस कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर पेरेंट्स एंड पीपल हु लिव फार फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। ये जो काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी है ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। दैट मीन्स जिनके बच्चे छोटे हैं वो एक फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड पे काम कर सकते हैं, और जो लोग अपने वर्क प्लेस से दूर रहते हैं उनको कम्यूट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक बोन है, वरदान है। वर्किंग फ्रॉम होम इज ऑल्सो मोर कंफर्टेबल। ये एक कंफर्टेबल मोड ऑफ वर्क है, एज वन कैन टेक अ ब्रेक व्हेन एवर नीडेड। जब भी एक ब्रेक की जरूरत है वो इंसान ब्रेक ले सकता है। Other advantage is that an individual have the possibility to work for companies in other countries. वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे, थ्रू इंटरनेट काम करेंगे तो आप दूसरी कंट्रीज के जो कंपनीज हैं उनसे भी काम कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। Therefore, people can apply for jobs globally as well as locally. तो अगर हमें घर पे बैठ के काम करना है तो हम लोकल कंपनीज के साथ साथ ग्लोबल कंपनीज में भी काम कर सकते हैं। दैट मीन्स हम जोग्राफिकली बाउंड नहीं होते हैं। अनदर चीज, और जो दूसरी चीज जो है दैट इज डिसएडवांटेजेस। ऑन द अदर हैंड, इसकी जगह पे आप ऑन द फ्लिप साइड भी लिख सकते हैं, वर्किंग फ्रॉम होम कैन ऑल्सो हैव इट्स डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। ट्रैवलिंग टू वर्क एंड वर्किंग इन एन ऑफिस विद अदर्स इज अनडाउटेडली अ सोशल एक्टिविटी।
ट्रैवल करके जाना, चाहे आप कार में अपने कलीग्स के साथ जा रहे हैं, चाहे आप अपने बॉस के साथ जा रहे हैं, या आप अपने टीम मेंबर के साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं रोज, वहां पर जाना, कम्यूट करना। एक ऑफिस में दूसरे लोगों के साथ बातचीत करके जो है वो काम करना एक सोशल एक्टिविटी है विच अ नंबर ऑफ पीपल प्रिफर एंजॉय। ये ऐसी एक्टिविटी है जो ज्यादा तौर पे बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं एज कंपैरेटिव टू वर्किंग फ्रॉम होम, और एंजॉय भी करते हैं, स्पेशली इफ दे लिव ऑन देयर ओन। इसका मतलब है जो लोग अकेले रहते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो रोज ऑफिस जाएं। विदाउट दिस सोशल इंटरेक्शन मैनी पीपल माइट फील वेरी लोनली। कई बार ऐसी सोशल इंटरेक्शन के खत्म होने के कारण लोग जो है वो अकेलापन महसूस करते हैं। फर्दरमोर many people may lack sufficient discipline to complete the work they need to do without an apt professional atmosphere। बहुत लोग जो है वो डिसिप्लिन में कमी, लैक ऑफ सफिशिएंट डिसिप्लिन में कमी महसूस करते हैं, अपने काम को पूरे टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाते बिकॉज एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर की कमी जो है वो रहती है जब हम घर पे काम करते हैं। टू इनकैपिचुलेट दैट मीन्स टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन वर्ड आपके होंगे। देयर आर क्लियरली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू दिस पर्सपेक्टिव। दोनों हिस्से हैं इसके, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रिगार्डिंग वर्किंग फ्रॉम होम, perhaps the ideal arrangement would be to spend part of the working week in an office with colleagues and part of the working week at home। कुछ हिस्सा वीक का आप ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ काम करें, एक आइडियल सेटअप ये है। कुछ वीक का हिस्सा आप घर पे काम करें, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहते हैं, कंफर्ट भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी चाहते हैं। दिस इज योर सोल्यूशन। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड्स इस सोल्यूशन को लेके, और शैल वी मूव फॉरवर्ड? मैम जो पॉइंट्स हम सबने बताए थे मैम, उनमें से हम कोई भी इलैबोरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं अरुण सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैम जो सबने हमने मेंशन करवाए थे वो ऑल करेक्ट थे? वो बिल्कुल करेक्ट थे, नहीं तो मैं लिखती ही नहीं। ठीक है, यू कैन हैव स्क्रीनशॉट ऑफ जो हम डिस्कस करते हैं, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी बोलिए। मैम आई ऑलरेडी डन। मैम बोलिए सिमर जी। एग्जांपल्स का है मैम? आइडिया बहुत है, तो दो बहुत है, अगर आप एक आइडिया लेंगे तो भी चलेगा। ओके देखिए हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी, जो आप लोगों का बैकग्राउंड नॉइसेस बंद कीजिए। दिस इज द लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी दैट आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो आप अपने टास्क्स में यूज करेंगे। सबसे पहला है कंसीव, इसका मतलब है किसी चीज को इमेजिन कर लेना या कोई चीज जो है वो ओरिजिन पे आ जानी, दिस इज कंसीव। नेक्स्ट इज कंडोन, कंडोन होता है अलाउ कर देना किसी चीज को, ओवरलुक कर जाना, या आप कहते हैं अप्रूव करना। एग्जाम्पल देखिए, शी कुड नॉट कंडोल हर डॉटर्स रिबेलियस बिहेवियर। वो अपनी अप्रूव नहीं कर सकती अपनी डॉटर का रेबेलियस बिहेवियर, मतलब उसकी जो डॉटर का बिहेवियर है उत्पात वाला, वो उसको बिहेवियर को वो बर्दाश्त नहीं करती। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव होता है एबल टू ब्रिंग अबाउट और बी सुटेबल फॉर। दैट मीन्स सुटेबल या सुटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तब कंड्यूसिव होता है। द नॉइजी स्टूडेंट्स हार्डली मेड द कैंपस लाइब्रेरी कंड्यूसिव टू स्टडीज। नॉइजी स्टूडेंट्स दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है अपने आप को सुटेबल बनाना लाइब्रेरी के एटमॉस्फेयर में। कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है खास तरह का बिहेवियर, राइट? किसी जगह को लेके, किसी खास जॉब को लेके, किसी खास सिचुएशन को लेके। फॉर एग्जाम्पल, बी श्योर टू कंडक्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, बी श्योर कि आप जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया है वैसा ही कंडक्ट करें। कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब होता है अपने सीक्रेट्स को किसी और के साथ शेयर कर लेना। एग्जाम्पल, शी कन्फाइडेड ऑल हर बिगेस्ट सीक्रेट्स इन हर बेस्ट फ्रेंड। वो कन्फाइड करती है, छुपा देती है अपने सीक्रेट्स को अपनी फ्रेंड में, दैट मीन्स उससे शेयर करती है।
कन्फाइन, रिस्ट्रिक्ट, रोक देना कुछ करने से, वी आर गोइंग टू कन्फाइन द यूज ऑफ दिस ड्रिंकिंग फाउंटेन। हम लोगों को ड्रिंक करने की जो आदत है उससे रोकेंगे। कंसेंसस, अग्रीमेंट हो जाना, जैसे मेजॉरिटी का कोई अग्रीमेंट बन जाना, दैट मीन्स किसी चीज को लेकर राजी हो जाना ज्यादा तौर पे लोगों का, दैट इज कंसेंसस। आफ्टर वीक्स ऑफ डिबेटिंग, बहुत सारे हफ्तों से जो डिबेट चली आ रही थी, द पैनल फाइनली केम टू अ कंसेंसस। जो बोर्ड थे, दैट मीन्स जो अथॉरिटी थी, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, एक अग्रीमेंट बना लिया। कंस्टिट्यूट, दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ, बहुत सारी चीजें मिलके जब कोई चीज बनाती हैं, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूट। दैट मीन्स द डिजायर फॉर क्वालिटी कंस्टिट्यूटेड द सिविल राइट्स मूवमेंट। एक इक्वालिटी की जरूरत जो थी, इसी का एक हिस्सा था, जो इसी के लिए एक हिस्सा बना था सिविल राइट्स मूवमेंट। उनका एक मोटो था कि वो सभी के लिए इक्वालिटी चाहते थे। कंटेम्पलेट, टू थिंक डीपली अबाउट, जैसे हम कहते हैं कि अच्छे से विचार कर लो, दैट इज कंटेम्पलेट। शी कंटेम्पलेटेड टेलिंग हर टीचर अबाउट द टीचिंग स्टूडेंट। उसने कहा टीचर को कि वो चीटिंग, जो स्टूडेंट चीटिंग कर रहा था, उसके बारे में एक अच्छे तरीके से सोच विचार कर ले कि उसकी कंप्लेंट करनी है या नहीं। कंटेंट, टू मेंटेन, किसी चीज का, किसी ओपिनियन को बना लेना। द प्रेसिडेंट कंटेंट्स, उसने एक ओपिनियन बनाया दैट द यूएस गवर्नमेंट विल नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स। प्रेसिडेंट ने बनाया कि उनकी जो कंट्री है वो टेररिस्ट्स के साथ कोई भी अग्रीमेंट, नेगोशिएशन होता है अग्रीमेंट, कि आप ये कर दो हम ये कर देते हैं, नेगोशिएशन जो है वो नहीं करेंगे। Please have the screenshot of that if you want these vocabulary words in your kitty. Any kind of a questions or queries from your sides? You have just 1 or 2 minutes. Please let me know. मैम अगर हम अपने फ्रेंड को ऐड करना चाहें तो जस्ट उसको मीटिंग कोड ही सेंड करना है या आप पहले ज्वाइन you are करवाना not पड़ेगा? supposed to give the meeting code to anyone. You are supposed to give his or her number to the team, जो आपके पास official number है, and they will let you know what you have to do. Okay? Excuse me, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. हाँ जी बोलिए। मैम मैं ये पूछ रहा था कि इसमें ये जो आपने आज सारा करवाया, ये सब रिलेटेड एकेडमिक से है या फिर मैम इसमें सेम लाइक जनरल का भी होता है मैम? ये दोनों के साथ रिलेटेड था। जब आपके ऐसा कुछ मैं करवाऊं कि जो एकेडमिक वाला है, तो मैं पहले ही डिफाइन करती हूँ कि ये टास्क जो है वो एकेडमिक का है, ये टास्क जनरल ट्रेनिंग वालों का है। ज्यादा तौर पे हम वो चीजें लेके चल रहे हैं जो आप सभी के लिए काम आने वाली हैं, राइट? ताकि इन चीजों से, जो हमारी ये फ्री सेशंस हैं, उनसे अगर एकेडमिक वाले कुछ सीख रहे हैं तो जीटी वाले भी सीखें। दिस इज द बेसिक मोटिव बिहाइंड आवर सर्च, कि हम रोज ऐसी क्लास ही बनाने की कोशिश करते हैं जो सभी के लिए यूजफुल हो, नॉट फॉर द वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। ओके मैम। और मैम एक क्वेश्चन और था, जब आप मैम रीडिंग करवा रहे थे उस टाइम मैं आपसे बात करना चाह रहा था बट मेरी आवाज नहीं आ रही थी आपके पास। हाँ जी जगजीत जी बोलिए। मैम मैं ये पूछ रहा था कि जो ABCDE वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना मैम, उसमें मैम पूरा पहले पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, पहले क्वेश्चन पूरे पढ़ने में कैसे, क्या उसमें पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। रीडिंग में कुछ भी करना हो पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देन यू विल शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स द पैसेज। देखिए एक सीधी सी बात है जगजीत सर, अगर आपको यही नहीं पता कि आपने ढूंढना क्या है तो आप कैसे ढूंढेंगे, राइट? तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद